morning, student. Good morning, sir. Okay. Today we are going to learn science subject. Unit number 2, health and disease. So, do you know what do you mean by health and what do you mean by disease? So, we can take here some videos. Here. Health. It's the state of complete physical, mental, and social well-being, Listen not just carefully. the absence of disease or infirmity. And good health is something we strive to achieve, not just individually, but also as a community. But if we look around us, our family, friends, and others, we know that health is very variable. For example, in 2016, the life expectancy of a child born in Sierra Leone was 53 years, while in Australia, it was 83 years. But even within Australia, the life expectancy of Indigenous people is about 10 years lower than that of non-Indigenous people. And even within a specific group of people, health can change based on a person's income, level of education or occupational and genetic makeup, and what they do, as in health behaviors such as smoking, physical activity, alcohol use, and diet. Health is also largely influenced by the conditions in which people are born, grow, live, Okay. So this is the videos related to the health. Now here, have you ever taken the leave from school due to sickness? First we recall some sentence here, some given questions. We will discuss on it. Have you ever taken the leave from school due to sickness? क्या कभी तुमने बीमारी के कारण कभी स्कूल से छुट्टी ली है? Yes. Yes or no? Yes, sir. Okay. And what is health? तो तुमने स्कूल से छुट्टी क्यों ली है? क्योंकि हम बीमार थे ना. Okay. Suppose you feel like a fever, you feel headache. That time you have taken the leave from school. And what is the health? What is health? Health means स्वास्थ्य. इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य क्या है? And what is disease and their types? And disease जो रोग होते हैं, तो and their types और उनके प्रकार. इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So here, what is health? Health स्वास्थ्य क्या है? Health को हम क्या कहते हैं? And what is the meaning of it? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of any disease. Again, what is health? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of any disease. Means होता है कि पूर्णतः complete physical मतलब पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक एंड बौद्धिक जो है पूरी तरह से स्वस्थ होना और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग न होना, उसको हम हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं. फिर से देख लेंगे एक बार. शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सुदृढ़ होना, मजबूत होना और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग न होना, उसे हम हेल्थ कहते हैं. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज डिसीज? फिर रोग किसे कहते हैं? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल or psychological process of body. Body is called as a disease. Each disease has its own specific symptoms. रोग किसे कहते हैं? मतलब कि शारीरिक और मानसशास्त्र दृष्टिकोण से शरीर का मजबूत न होना, उसको हम कहते हैं डिसीज, रोग कहते हैं. और यहाँ पे जो हर रोग होता है, तो हर रोग के यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, और सभी लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो सब अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिसीज. तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ के बारे में है. नाउ सम पीपल फॉर गुड हेल्थ दे ईट proper health food, they take a proper medicines, or they take a proper diet for the strong health. Some people they go for the morning walk, they exercise on a proper time,
they maintain their health in proper way. So for there are different tips for the good health, like early morning, get up on a time, go for a walk, take a food on a time to time. This is the better tips for the good health. Now here disease. There are different types of disease in our surrounding area. Or human being, they suffer from the different disease. In every life, we see some patients in hospital, in home also, in neighbor also, in our area also, in a different disease. तो ऐसे कोई रोग बताओ जो आप जानते हो. Say some names of disease. जो भी डिसीज के नाम तुमको पता है बोलो. किसी रोगों के नाम बोलो ना. यस बोलो. डेंगू. यस. और डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और भी बहुत सारे रोग है ना, जैसे चिकन पॉक्स हो गया. अभी लेटेस्ट हमको 2 साल हम किसमें थे? कोविड. वो भी एक प्रकार का डिसीज है, वायरस है. वो भी एक प्रकार का डिसीज है, वायरस है. ओके. और भी है, जो भी डिसीज है उसकी आपको लिस्ट बनाना है. एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. तो रोगों के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ डिसीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. यहाँ पे समय के अनुसार, यहाँ पे जो रोगों के प्रकार है यहाँ पे समय के अनुसार है. अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, समय के अनुसार. क्रोनिक डिसीज है जिसको हम दीर्घकालीन रोग कहते हैं. हियर आर टाइप्स ऑफ डिसीज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. क्रोनिक डिसीज, एक्यूट डिसीज, एंड अकॉर्डिंग टू रीजन, हेरिडिटरी डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज, इन्फेक्शन डिसीज एंड द नॉन इन्फेक्शन डिसीज. टाइप्स ऑफ डिसीज में अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन जो है ये समय के अनुसार जो है रोग, वो है क्रोनिक डिसीज जिसको हम दीर्घकालीन रोग कहते हैं. एंड एक्यूट डिसीज जिसको हम बोलते हैं तीव्र रोग. अकॉर्डिंग टू रीजन, कारण के अनुसार होने वाले रोग, हेरिडिटरी डिसीज, डाउन सिंड्रोम जिसको हम आनुवंशिक रोग कहते हैं. एंड एक्वायर्ड डिसीज जिसको हम बोलते हैं उपर्जित रोग, जिसमें इन्फेक्शन डिसीज, इसमें संक्रमण डिसीज होता है, एक से दूसरे को फैलना, उसको हम बोलते हैं संक्रमण. एंड नॉन संक्रमण, असंक्रमण जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता, उसको हम असंक्रमण रोग कहते हैं. सो टाइप्स ऑफ डिसीज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, क्रोनिक डिसीज, एक्यूट डिसीज. अकॉर्डिंग टू रीजन, हेरिडिटरी डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज. इन एक्वायर्ड डिसीज देयर आर इन्फेक्शन डिसीज. Example, common cold, flu and dengue. This is infection disease. And non-infection disease, diabetes, heart disease. या किसी को अगर मधुमेह की बीमारी होगी उसको डायबिटीज, एंड किसी को हार्ट की दिल की बीमारी है, so they are in the group of non-infection disease. Now here infection disease. So infection disease is the डिसीज दैट कम्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द रीजन. ये कारण के कारण होने वाले डिसीज है जिसको हम यहाँ पे एक्वायर्ड डिसीज कहेंगे. इन्फेक्शन डिसीज जो संक्रमण के कारण होते हैं. तो नेम ऑफ डिसीज ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टीबी. आपने कभी सुना टीबी? यस. और टीबी के रोग देखे हो आपने? यस. यस. हम जिस परिसर में रहते हैं यहाँ पे भी टीबी के रोग है. तो ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं उसको हम हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्षय रोग. एंड इसको हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस, हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस जिसको हम पीलिया कहते हैं. क्या कहते हैं? पीलिया. डिसेंट्री जिसको पेचिस अतिसार बोलते हैं. कॉलरा एंड द टाइफाइड. ठीक है. ये सब जो है these are the infection disease. Name of the diseases: tuberculosis, hepatitis, dysentery, cholera, and the typhoid. These are the infection diseases. Now here, this is the tuberculosis. This is the tuberculosis. एक क्षय रोग है. इसमें अगर किसी को suppose a person is
affected from the tuberculosis and he is suffering from the TB. So how will you know that this is the TB patient? तुमको कैसे पता चलेगा कि ये TB patient है? कैसे पता चलेगा? बीमार हो जाएगा ज़्यादा। TB patient के what is the symptoms of TB patients? उसके लक्षण क्या है? क्या बोलेंगे? TB patient के लक्षण क्या है? और उसके सिम्टम्स है क्रोनिक ब्लड स्पिटिंग, emissions, difficult breathing, spitting by the patient through air, prolonged contact with the sharing of the material of the patient. जिसकी मोड है मतलब इस तरह से वो स्पीड होगा. Suppose the TB patient is suffering from the tuberculosis, spitting by patient, अगर वो उनके थूक से भी वो स्प्रेड होगा. अगर टीबी पेशेंट है इसलिए जो गवर्नमेंट है या ग्राम पंचायत हो या महानगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे इम्पोज द पॉलिसी डोंट स्पीड एनीवेयर. ओके, आप ट्रेन में जाओगे या प्लेटफॉर्म पे जाओगे, स्टेशन पे जाओगे या किसी पब्लिक प्लेस में जाओगे तो वहाँ पे बैनर लगे होते हैं डोंट स्पीड एनीवेयर, कहीं भी थूको मत. ठीक है, थूको मत, नहीं तो तुमको यू विल बी पे फाइन, तुमको फाइन करना पड़ेगा. इस तरह से लगाया जाता है ना. So they monitoring the to save the people, to save the society from the tuberculosis. तो इस तरह से अभियान चलाए जाते हैं. पैथोजेन माइकोबैक्टीरियम tuberculosis and the mode spreading by patient through air, prolonged contact with and sharing of materials of the patient. अगर कोई टीबी पेशेंट है, अगर वो कहीं भी थूकेगा या उसके थूक से इस रोग का प्रसार हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि these are the इन्फेक्शन डिसीज ना. ये जो है ये सारे क्या है, इन्फेक्शन डिसीज है. तो ये उनके थूकने से, स्पीडिंग करने से भी ये फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है. थ्रू एयर, हवा के द्वारा इस रोग का प्रसार होता है. टीबी का पेशेंट ज़्यादा क्या करते हैं, थूकते, खांसते हैं, खांसी भी आती है उनको, थूकते हैं. उनको खांसने से, थूकने से उसके जो वायरस है या उसके जो बैक्टीरिया है वो कहाँ स्प्रेड होंगे, हवे में स्प्रेड होंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, उसका स्प्रेडिंग होगा, फैलेंगे वो. और उसके कारण क्या होगा कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस रोग है ये दूसरे इंसान को भी इन्फेक्टेड करेगा. प्रोलॉन्ग कांटेक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ द पेशेंट, अगर वो उस व्यक्ति के मटेरियल्स को हम शेयर करते हैं एक दूसरे से तो भी ये जो टीबी का रोग है ये फैलता है. फिर इसके टीबी के रोग को हम कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हाउ वी प्रिवेंट द ट्यूबरकुलोसिस डिसीज, इन्फेक्शन डिसीज. प्रिवेंशन, इसके रोकथाम के उपाय क्या है? सो बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी का टीका लगाओ. ट्यूबरकुलोसिस व्यक्ति को, जिस सपोज द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, they will be vaccinated या prevented by the BCG vaccine. As a relation of the patient, regular medicine like DOT, उनको जो है रेगुलर मेडिसिन से या उनको आइसोलेशन करके या उनको बीसीजी का वैक्सीन देकर हम ये जो है ट्यूबरकुलोसिस टीबी के रोग को हम कम कर सकते हैं. आफ्टर दैट हेपेटाइटिस जॉन्डिस, ये पीलिया जो है, कभी पीलिया आप लोगों में से कभी किसी को हुआ है पीलिया? जब किसी इंसान को पीलिया होता है या जॉन्डिस होता है तो उसको कैसे पहचानते हैं? उसकी आंखें, उसके आंखें पीली हो जाती है, नाखून उसके देखो पीले पीले हो जाते हैं, उसके चेहरे पे भी पीलापन ज़्यादा दिखाई देता है, या पेशाब का जो रंग होता है वो ज़्यादा पीला होता है, भूख नहीं लगना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो जॉन्डिस के लक्षण होते हैं, जिसको हम हेपेटाइटिस जॉन्डिस पीलिया कहते हैं. सो पैथोजेनिक हेपेटाइटिस वायरस ए, वायरस बी, वायरस सी, वायरस डी, वायरस ई. मोड कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसमिशन. पानी के कारण ये रोग होता है, शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके कारण भी ये जॉन्डिस के रोग होते हैं. अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या सिम्टम्स को दिखाई देता है? एनोरेक्सिया, येलो यूरिन दिखाई देता है, पेशाब का कलर सफेद, जनरल वीकनेस, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें थकावट होती है, एंडोनोजिया, वोमिटिंग, ग्रे स्टूल,
वोमिटिंग में उल्टियाँ भी होती है, ठीक है। और ये सारे जो क्या है जॉन्डिस के लक्षण है। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस? सो एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड द ग्रे स्टूल। प्रिवेंटेशन, व्हाट डू वी टेक द प्रिवेंटेशन फॉर द जॉन्डिस हेपेटाइटिस disease? So this is also infection disease. Prevention, drinking boiled water. हमको उबाल कर पानी पीना चाहिए। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द हैंड्स, और हाथ हमारे कैसे होना चाहिए? हमेशा साफ सुथरे होना चाहिए। सो व्हाई डू वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर? हम गरम पानी क्यों पीते हैं? गले के लिए अच्छे के लिए। यस। और कोई बोलेगा व्हाई डू वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर? यस, टू प्रिवेंट, हाँ, इस तरह से मतलब कि टू प्रिवेंट द डिसीज। एंड नेक्स्ट डिसेंट्री। सबको पता है डिसेंट्री मतलब कि, हाँ, जिसको हम पेचिस कहते हैं। सो पैथोजेन बैक्टीरिया है, वायरस, शिगेला, बेसिली, इंडोमोबिया एंड स्टोलिटिका, ये इसमें पैथोजन है। एंड मोड ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। डिसेंट्री हमको क्यों होता है? अगर हम दूषित भोजन है, दूषित पानी, खराब भोजन और खराब पानी, नॉट क्लीन वाटर, वो अगर हम यूज करते हैं तो हमको ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट्री पेशिस, जिसको हम अतिसार कहते हैं, मतलब कि बार बार टॉयलेट के लिए जाना, वो, और यहाँ पे जो टॉयलेट होती है वो पानी की तरह होती है, उसको हम यहाँ पे डिसेंट्री। इसमें प्रिवेंशन क्या है कि ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ORS कंजम्पशन। यहाँ पे जब अगर हम डिसेंट्री से सफ़र करेंगे, सपोज वी सफ़र फ्रॉम द डिसेंट्री, वी शुड टेक द ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, वी शुड यूज द बॉइल्ड वाटर, we should use the ORS liquid and proper storage of the food. Generally dysentery क्यों होती है? कोई बताएगा क्यों होती है डिसेंट्री? अगर हमने खराब भोजन का यूज किया, खराब पानी पिए, तो हमारा पेट खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा भोजन को कैसे रखना चाहिए? ढककर रखना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। और खास करके डिसेंट्री जो होती है रेनी सीजन में, बरसात के समय में, क्योंकि बरसात में जो मैक्सिमम क्या होता है कि शहरों में पाइपलाइन के द्वारा पानी आता है, और बरसात में देखो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पानी उस पाइपलाइन में मिलते हैं या टच होते हैं। अगर कहीं भी लीकेज हो तो वो पानी मिल जाएगा, उससे पानी क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है, मतलब हमारे तक के पानी, नॉट क्लीन वाटर हमारे तक के पहुँचता है। तो हमको उसको कैसा पीना चाहिए? बॉइल वाटर करके पीना चाहिए। एंड तो यहाँ पे पैथोजेन, बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, बेसिली, इंडोमोबिया, स्टोलिया, मोड ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, सिम्टम्स, वाटर स्टूलिंग, पेन इन एब्डोमेन, प्रिवेंशन, ड्रिंकिंग ऑफ द बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द फूड, ORS कंजम्पशन। कॉलरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हैजा, ओके, कॉलरा। इसके बारे में कौन बताएगा? कोई बताएगा इसके बारे में? पेट में दर्द, हाँ, पानी की तरह पतली जुलाब। हाँ, ये जिसको हम हैजा बोलते हैं। पैथोजेन, विब्रो, कॉलरा, बैक्टीरिया, मोड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी पानी और भोजन के कारण ही हैजा होता है। सिम्टम्स, वोमिटिंग। इसके कारण कैसे हैं? किसी इंसान में कॉलरा या हैजा कैसे होगा, ये हम कैसे पहचानते हैं? सपोज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा, he vomited, he had diarrhea and cramps in the legs. We know, suppose a person who is suffering from cholera, he is symptomatic by vomiting, severe diarrhea, cramps in legs. अगर उसको बार बार उल्टी होती है, उसको बार बार डायरिया होता है और वो उसके पैरों में सूजन, तो इसके कारण हम पहचानते हैं कि उसको क्या हो गया? कॉलरा हो गया। फिर अब कॉलरा, अगर व्हाट इज द प्रिवेंटेशन फॉर द कॉलरा? फॉलोइंग हाइजीन प्रैक्टिसेस
open place food, drinking boiled water, vaccination against cholera. तो यहाँ पे अगर हैजा का रोग प्रसारित होता है, ये भी इन्फेक्शन रोग है, ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन है, ये भी संक्रमित होता है एक इंसान से दूसरे इंसान को। यहाँ पे हाँ हैजा, तो पैथोजन यहाँ पे उसके सिम्टम्स है वोमिटिंग, अगर कभी तुमको बार बार वोमिटिंग आए, ज़्यादा वोमिटिंग हो जाए, या सीवर डायरिया जैसे हो जाए, या क्रैम्प्स इन लेग्स, तो समझ लो कि तुमको क्या हो गया, कॉलरा, हैजा, यह रोग हो गया। अगर ये रोग होता है तो उसके लिए तुमको क्या करना है, फॉलो हाइजीन से उसको तुमको फॉलो करना है। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, अगर खुला हुआ भोजन है उसको तुमको नहीं खाना है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी तुमको पीना है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा, अगर हैजा के विरुद्ध अगर हैजा जो टीका है वो तुमको यहाँ पे लगाना है। एंड आफ्टर दैट टाइफाइड, टाइफाइड, डू यू नो व्हाट इज टाइफाइड? खाद्य पदार्थ धोकर रखना चाहिए, पानी उबालकर तथा छानकर पीना चाहिए, जल संजीवन ORS लेना चाहिए। यस, वेरी गुड। सो टाइफाइड जो होता है पैथोजन सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया में मोड है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स इसमें एनोरेक्सिया, इसमें टाइफाइड में हेडेक होता है, रेस ऑन एब्डोमेन, पेट में दर्द होता है, इसमें डिसेंट्री एंड फीवर अप टू 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें टेम्परेचर होता है। प्रिवेंटेशन, इसमें टाइफाइड में प्रिवेंटेशन क्या लेना है कि वी शुड ड्रिंक वाटर, क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, दिस इज द प्रिवेंटेशन फॉर टाइफाइड। तो ये टाइफाइड से हमको उसकी सुरक्षा के लिए हमको ये सारे प्रिवेंटेशन लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था okay, prepare similar table of information about various disease like hepatitis, malaria, plague, AIDS। इसमें जो है आपको यहाँ पे जैसा हमने अभी चार्ट देखा इन्फेक्शन डिसीज के बारे में, वैसे ही आपको prepare similar table of information about various disease, अनेक प्रकार की जो बीमारियां अन्य प्रकार की, जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया, प्लेग, एड्स, इसके बारे में आपको चार्ट बताना है, उसमें इसके सिम्टम्स, प्रिवेंटेशन एंड द पैथोजन, ये सारा का सारा वहाँ पे तुमको राइट डाउन करना है। नाउ हियर सम इम्पोर्टेंट डिसीज ऑफ द प्रेजेंट डेज। आज के समय में आज की जो अन्य बीमारी है, अन्य रोग है, उनके यहाँ पे हमको डिटेल्स में देखना है। सम इम्पोर्टेंट डिसीज ऑफ प्रेजेंट डेज, डेंगू, फर्स्ट इज डेंगू, सेकंड इज स्वाइन फ्लू, थर्ड इज एड्स एंड फोर्थ इज रेबीज। सो डिड यू हियर दिस डिसीज नेम? क्या तुमने कभी ये रोगों के नाम सुने हो? डेंगू का नाम सुने हो? यस सर। डेंगू, अच्छा, डेंगू ये क्यों होता है? मच्छर काटने से। मच्छर काटने से। ओके, डेंगू जो है इट इज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ, कौन से मच्छर के काटने से डेंगू होता है? कौन से मच्छर के काटने से होता है डेंगू? इजिप्ट एडिस, हाँ एडिस एजिप्ट नाम के मच्छर के काटने से डेंगू होता है। एंड मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलिस, ये जनरल नॉलेज है, दिस इज द जनरल नॉलेज। सो डेंगू, स्वाइन फ्लू, एड्स, रेबीज, दिस इज द सम इंपॉर्टेंट प्रेजेंट डिसीज। नाउ हियर हम इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे डेंगू, यहाँ पे दिख रहा है आपको मॉस्किटो? यस सर। ओके, सो मॉस्किटो लेज द एग्स इन वाटर, लॉक प्लेस एंड thereby their population increase। तो मॉस्किटो जो होता है वो जहाँ पे जमा पानी होता है, मच्छर ये जहाँ पे पानी बहुत दिनों से जमा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, अपने घर पे रखा हुआ एक गमला भी हो सकता है, या
कहीं अगर टायर पड़ा हो, टायर के भीतर अगर पानी जमा हो, उसके अंदर। या कोई भी बर्तन या कहीं पे भी बहुत दिनों से समझा कोई भी प्लेस में पानी बहुत दिनों से जमा है, तो वहाँ पे क्या होता है, मॉस्किटो ले द एग्स, वहाँ पे मच्छर अंडे देता है, ये देर बाद देर पॉपुलेशन इंक्रीज, और उसके बाद में वहाँ पे लार्वा से बहुत मच्छर तैयार होते हैं। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीज, और जो अन्य जगह है हर जगह पर वहाँ पे अलग अलग जगह पर जो मच्छर रहता है उससे ये रोग प्रसारित होते हैं। डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टी। देखो मैंने बताया आपको, एजिम एडिस प्रजाति के मच्छर काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय डेंगू-1-4 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेविवायरस। तो डेंगू-1-4 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप फ्लेविस, इस प्रकार में ये डिसीज आता है, मतलब कि इस वायरस के द्वारा ये रोग का प्रसार होता है। सो डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, उसके काटने से डेंगू होता है। डेंगू, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर? एक्यूट फीवर इन द हेडेक, इसमें बहुत तेज बुखार आता है और सर का दर्द भी होता है। एक्यूट फीवर एंड हेडेक, तेज बुखार आना और सिर दर्द होना, वोमिटिंग, उल्टी होना, ये सब डेंगू के लक्षण है। पेन्स इन आईज ऑफ इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स, आंखों में जलन, आंखों में दर्द होना, ये भी डेंगू के लक्षण है। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट दैट मे लीड टू द इंटरनल हेमोरेज। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का लक्षण है डेंगू। अगर ये लक्षण अगर आपको दिस सिम्टम्स इज शोड इन योर बॉडी, यू हैव टू नो दिस इज द डिसीज ऑफ डेंगू। ये अगर आपको आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या आपके नेबर में या आपके घर में अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये डेंगू है। ये सब जानकारी हमको होना चाहिए। फिर इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? टू टेक अ ट्रीटमेंट, टू गो हॉस्पिटल, or to advise to the doctor. And next, this is swine flu. ये क्या है? स्वाइन फ्लू का चार्ट है। स्वाइन फ्लू जो है ये इंडिया में भी कुछ साल पहले आया था, और ये जो स्वाइन फ्लू है, रीजन्स ऑफ द इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर्स थ्रू pigs and the humans. Viruses of swine flu are spread through secretion of nose, throat and the saliva. We know जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से 10 टाइम्स और 100 टाइम्स छोटे क्या होते हैं? वायरस। एंड स्वाइन फ्लू इज द वायरस। स्वाइन फ्लू क्या है? वायरस। वायरस है जो किससे होता है? पिग्स, जिसको हम शुअर कहते हैं। इंसानों और जानवरों के द्वारा इस वायरस का प्रसार होता है। वायरस ऑफ द स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशन ऑफ नोज, छींकने से इस रोग का प्रसार होता है। थ्रोट एंड सैलिवा, गले में जो दर्द होता है इसमें सैलिवा। सिम्टम्स ऑफ द स्वाइन फ्लू, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण हम समझे कि ये स्वाइन फ्लू है। सो डिफिकल्टीज इन द ब्रीदिंग, अगर किसी व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हो गया तो उसको क्या लक्षण होते हैं? He cannot breathe proper, he suffering to breathe, उसको सांस लेने में क्या होगी? तकलीफ होगी। Difficulties in the breathing, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। Sore throat, गले में उसके दर्द होगा। And body pains, और बहुत ज्यादा उसके शरीर में क्या होगा? दर्द होगा, पेन होगा। So this is the symptoms of the swine flu. Again, reasons of the infection. Infection from swine flu occurs through pigs and humans. Viruses of the swine flu are spread through the secretion of nose, throat and the saliva. Symptoms of the swine flu: difficulty in the breathing, and sore throat and body pain. This is the swine flu. And next, AIDS. This is infection disease. AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. ये एक एड्स है जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होते हैं, और ये HIV संक्रमण के कारण होता है। HIV वायरस, जिसको ह्यूमन इम्यूनिटी
वायरस कहते हैं। So this disease is caused by HIV, human immunodeficiency virus. In this disease, people suffer from various disease. और अगर किसी व्यक्ति को ये HIV एड्स होता है तो वो व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से सफर होता है, परेशान होता है, उसको अनेक प्रकार के रोग होते हैं। In this disease, victims suffer from various disease due to progressive weakening of natural immunity. इस रोग में उस व्यक्ति के जो अंदरूनी शक्ति है, उसके शरीर की जो प्रतिकारात्मक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर उसका बहुत कम हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ द एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैबोरेटरी। और किसी भी वैद्यकीय परीक्षण के बिना हम उसको कंफर्म नहीं कर सकता। सो एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस। और एड्स की बीमारी के लिए ये जो एलिसा टेस्ट है, इसको ही प्रॉपर माना जाता है। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। अगर किसी व्यक्ति को एड्स से बीमारी हो गई तो उसमें क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, ये एड्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अफ्रीका में ये बंदर नामक प्रजाति को हुई थी। सबसे पहले एड्स किसमें आया था? बंदरों में। किसमें आया था? बंदरों में। उसके बाद में सर्वे और इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। Which measures are taken at your home to control the rate? Which measures are taken at your home to control the rate? Why is it necessary to care about health of the domestic dogs, cats and birds? Okay. Infection through the animal. यहाँ पे हम आगे देखेंगे ये प्राणियों से होने वाले इन्फेक्शन, प्राणियों से होने वाले इन्फेक्शन, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। Which measure are taken at your home to control the rates? चूहे को मारने के लिए, चूहे होते हैं ना सबके घर में, उसके मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए तुम क्या क्या उपाय करते हो? मेडिकल जाके दवा लेते हैं। Okay. केक। हाँ, केक है या एक चीज है वो भी आती है। हाँ, उसको यूज करते हैं। Why it is necessary to care about health of the domestic dog, cats and the bird? जो हमारे घर पे जानवर है, घरेलू जानवर, पालतू जानवर, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या पक्षी हो, उससे हम लोग किस तरह की सुरक्षा बरतनी चाहिए? Is there any relation between peers, pet animals and the human health? क्या इसमें कोई संबंध है? What are effects of the rats, cockroach on human health? और चूहे और जो कॉकरोच है, इसके हमारे मानवीय स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है? डिस्कशन करना है। Do you know rabies? रैबिज के बारे में कभी सुने तुमने? नो। क्या काटने से रैबिज होता है? यस, वेरी गुड। चूहे के काटने से रैबिज होता है। डॉग, एनिमल्स, कुत्ते के काटने से रैबिज होता है। दिस इज अ वायरल डिजीज। ये एक संक्रामक रोग है। ये क्या है? इट ऑफर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग। अगर कोई संक्रमित कुत्ता है या डॉग है या रैबिज और डंके कैट किसी से उसके काटने से ये रैबिज होता है। वायरस इंटर्स द ब्रेन वाया नर्वस। और ये जो हमारे मज्जातंतु है उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क में ये इंटर करते हैं। हाइड्रोफोबिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। अगर किसी व्यक्ति को रैबिज नाम का रोग हो गया तो उसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी उसको पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? पानी से। अगर कोई व्यक्ति रेबीज से संक्रमित है इसीलिए उसको वो पानी के पास कभी नहीं जाएगा। उसको पानी से क्या लगता है? डर लगता है। In this case, the victim should extreme fear from water. उसको पानी से डर लगता है। Rabies is fatal disease. However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of the symptoms. इसको रोका जा सकता है। यह रोग, इस रोग को, रेबीज रोग को रोका जा सकता है। और इस रोग को रोकने के लिए हमको समय पर क्या लेना पड़ेगा? यस, टीका लेना पड़ेगा। रेबीज का टीका लेना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। समय पे हमको इसका ट्रीटमेंट करना होगा। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ द डॉग बाइट। ये जो रेबीज के जो रोग है या रेबीज
वायरस है ये कब फैलते हैं? किसी हाँ अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को काट दे तो उसके 90 और 175 दिन के भीतर में ये रेबीज के लक्षण सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसलिए जैसे कुत्ते ने काटा वैसे तुरंत हॉस्पिटल जाकर उसका जो है इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लेना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ द रेबीज, फीवर फॉर 2 to 12 डेज, 2 से 12 सप्ताह तक क्या रहता है? बुखार रहता है। एग्जर्शंस इन बिहेवियर, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। हाइड्रोफोबिया होता है उसको, समझ में आ गया? तो इस प्रकार के ये लक्षण है। अगर ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो समझ जाओ उसको किसके लक्षण है? सो अगेन दिस इज अ वायरल डिसीज, इट occurs due to the bite of infected dog, rabbits, monkey and cat. Virus enters the brain via nerves. Hydrophobia is one of the important symptoms of the disease. In this case, the victim shows extreme fear for water. Rabies is fatal disease. However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of the symptoms. Symptoms start to appear within 90 to 175 days of dog bite. Symptoms of rabies: fever for 2 to 12 weeks, exertion in behavior, hydrophobia. Next, non-infection disease. Okay, stop. Hello. This is the Welcome to this non-infection video on diseases. non-communicable diseases. We'll take a look at what they are and some key features about them. So, what are non-communicable diseases? They are a large group of diseases, which are by definition not communicable from one person to another. They're also called chronic diseases because they're usually long-lasting and progress slowly. They occur as a result of a complex interaction of genetic, physiological, behavioral, and environmental factors. So, non-infection disease, असंक्रमण रोग। यहाँ पे कैंसर, here is cancer, diabetes and heart disease. This is the non-infection disease. Okay, you can observe in the picture also. Okay, cancer, uncontrolled abnormal cell growth is called cancer. जो हमारे बॉडी सेल्स है उसमें ज़्यादा सेल ग्रोथ होते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ होते हैं, उसके कारण ये कैंसर की डिसीज होती है। ग्रुप और नर्व ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मेडिसन ट्यूमर। कैंसर कैन अफेक्ट वेरियस ऑर्गन लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेन, टर्स, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। तो जो कैंसर होता है ये हमारे बॉडी में लंग्स, फेफड़ों में कैंसर होता है, माउथ, मुंह का भी कैंसर होता है, टंग, जीभ का, स्टमक, पेट का कैंसर, ब्रेस्ट, अटर्स, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। रीजंस कैंसर, व्हाट इज द रीजन ऑफ कैंसर? कंजम्पशन ऑफ टोबैको, तंबाकू का सेवन करने के कारण। यू नो टोबैको, जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको ज़्यादा कैंसर होने का प्रमाण होता है। तो कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट लाइक फ्रूट एंड लीफी वेजिटेबल इन फूड, excessive consumption of junk food like pizza, burger are some of the many possible reasons. Heredity may also be a reason. कैंसर क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? तंबाकू के सेवन के कारण कैंसर होता है, गुटखा, स्मोकिंग, शराब के सेवन के कारण कैंसर होता है, लेक ऑफ फाइबर कंटेंट। अगर हमारे बॉडी में फाइबर जो होते हैं उसके अगर उसकी कमी के कारण भी कैंसर होता है। इसलिए समय समय पे फ्रूट्स जो है ये हरी सब्जियां और फलों का सेवन हमको करना चाहिए। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड, ज़्यादा जंक फूड खाने से, ज़्यादा वड़ा पाव खाने से भी डर होता है कैंसर होने का। ज़्यादा पिज्जा, ज़्यादा बर्गर
ज़्यादा मात्रा में। अगर हमारे शरीर को जितना जरूरत है उससे कई गुना ज़्यादा खाओगे तो भी हमको कैंसर होने का डर होता है। आज some of the many possible reasons severity may also be reason, और आनुवंशिकता भी एक कारण है। तो symptoms here, what is the symptoms? उसके लक्षण क्या है? So chronic cough, hoarse voice, difficulty in the swallowing, incurable scare and the inflammation, lumps in breast, unexplained weight loss. These are the symptoms or regions of the cancer. Means chronic cough, ज़्यादा समय तक खांसी होगा। Hoarse voice, घोड़े की जैसी आवाज हो जाती है। Difficulty in swallowing, incurable scare and inflammation, lumps in breast, unexplained weight loss, ज़्यादा वजन कम हो जाना, वजन का बढ़ जाना, ये भी एक कारण होता है। Next is non-expression disease, diabetes. डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह की बीमारी होते हैं। कभी सुना डायबिटीज के बारे में? यस। डायबिटीज क्या होता है? बोलते हैं ना, ज्यादा मीठा खाओगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, the hormone insulin produced in the pancreas control the level of the sugar close in blood. हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा, इसको कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। If insulin is secreted in low quantity, अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाए, हमारे बॉडी में अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, तो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन हमारी बॉडी में पेनक्रियास में तैयार होता है। This disorder is called diabetes. अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए और हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल न करे तो इसमें हमारे को मधुमेह डायबिटीज होता है। Symptoms which cannot be ignored, और ये जो लक्षण है जिसको हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, मधुमेह नाम की बीमारी है, डायबिटीज बीमारी है, so what is the symptoms which cannot be ignored? Frequent urination at night. तो ऐसे लोग, अगर किसी को मधुमेह डायबिटीज की बीमारी है तो ये व्यक्ति रात को बार बार पेशाब जाते हैं। It is obesity or weight loss reason for the diabetes. ज़्यादा वजन बढ़ना और ज़्यादा मात्रा में वजन कम हो जाना, ये भी डायबिटीज के लक्षण है। Hereditary obesity, यहाँ पे आनुवंशिकता, obesity, lack of physical exercise, मतलब कि जो है व्यायाम उसका अभाव और मेंटल स्ट्रेस, these are the symptoms which cannot be ignored. Next, heart disease. यहाँ पे heart disease मतलब जो हमारे हार्ट के डिसीजेस होते हैं, हृदय के बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिल की बीमारियाँ। So efficiency of the heart is decreased, efficiency of the heart decreased due to decreased blood supply and thereby oxygen and the nutrition supply to the heart muscles. हार्ट के डिसीज क्यों होते हैं? अगर हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड का सप्लाई ना हो, प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई ना हो, तो दिल की बीमारियां होगी, हार्ट की बीमारियां होगी। समझ में आ गया? एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द हार्ट मसल, और जो हृदय स्नायु होते हैं उसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके कारण यहाँ पे हमको क्या होता है? हार्ट की डिसीज होती है। इसलिए कभी अगर हमने सांस रोके तो हार्ट धड़कने लगता है। ऑक्सीजन इन हार्ट, ऑक्सीजन इन ब्लड, ये हमारे हार्ट को अगर नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। Due to this, heart has to perform more work that leads to stress on it. This may cause heart attack. अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होता है? क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। आता है कि नहीं? हार्ट अटैक आता है। If someone has heart attack, immediate consultation of doctor and treatment is necessary. अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और किसके पास लेके जाने की जरूरत होती है? डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। So it is very necessary immediate consultation of the doctor and the treatment is necessary.
हॉस्पिटल. रीजन ऑफ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक आने के रीजन क्या होता है? व्हाई हार्ट डिसीज इंक्रीज, या व्हाई आवर सोसाइटी इज सफरिंग फ्रॉम टू मच हार्ट अटैक. सो स्मोकिंग, जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, और स्मोकिंग मतलब क्या होता है? जैसे सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ठीक है, ये ज़्यादा स्मोकिंग. अल्कोहलिज्म, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं. डायबिटीज, डायबिटीज भी एक हार्ट अटैक डिसीज का एक रीजन है. किसी को मधुमेह. हाइपरटेंशन, ज़्यादा किसी को अति टेंशन आता है, हाइपरटेंशन. ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एनेक्सिटी. दिस इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक. नाउ हियर हार्ट डिसीज. ये दिख रहा है आपको हार्ट? यस. सबका हार्ट, तुम्हारा हार्ट, मेरा हार्ट, सबका हार्ट इस तरह से होता है. समझा गया? सो हार्ट डिसीज. हार्ट डिसीज में हम क्या कर सकते हैं? एंजियोप्लास्टी. अगर किसी को हार्ट का डिसीज है तो उसके लिए क्या किया जाता है? एंजियोप्लास्टी किया जाता है. बाईपास सर्जरी की जाती है हार्ट की. ओपन हार्ट सर्जरी होती है. हार्ट ट्रांसप्लांट होता है. इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर. दिस इज द हार्ट डिसीज. एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर. ये केम हॉस्पिटल जानते हैं ना, जो मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल, या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल, वहाँ पे इस तरह से हार्ट पे ट्रीटमेंट किया जाता है. प्राइवेट हॉस्पिटल है, मुंबई में तो लीलावती, बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है. नाउ आफ्टर दैट generic medicine. Generic medicine. Generic medicine. What do you mean by the generic medicine? Generic medicine are also known as general medicine. These are manufactured and distributed without any patent. These medicines are equivalent quality with the branded medicine. Production cost of this medicine is very low due to fewer expense on research as their formula is readily available. तो जेनरिक मेडिसिन एक प्रकार की सामान्य औषधि होती है और इसमें कोई पेटेंट नहीं होता. जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का पेटेंट होता है ना, तो इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो पेटेंट होता है वही सेम फार्मूला रहता है, लेकिन इसमें कोई पेटेंट नहीं होती है और यह अपने देश में ही बनाई जाती है, जिसके कारण यह कम मूल्य में, कम दाम पर सामान्य लोगों को प्राप्त होती है. अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करेंगे तो अमेरिका एक ऐसा देश है. अमेरिका इज अ कंट्री दैट देयर 80%, मोर देन 80% जेनरिक मेडिसिन आर यूज्ड. पूरे वर्ल्ड में अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे 80% से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन दी जाती है. तो वहाँ के लोगों को आसानी से मिल जाती है. अगर महंगी दवाई रहेगी तो हम आसानी से ले पाएंगे? उतना पैसा भी तो होना चाहिए. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हमको जनरल मेडिकल सप्लाई करती है. और अभी देखो आपको 1 जुलाई 2015 से 2015 से जन प्रधानमंत्री जन औषधि ये हमको मिलती है. ठीक है, तो ये आपको, आप इस पे इंटरनेट पे भी इसको देख सकते हैं. और मैं आपको खुद बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन की यूज़ करो. साइन हॉस्पिटल पास में भी वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन है, उसका आप यूज कर सकते हो. और इसको बनाने के लिए कम खर्चा भी लगता है. इसमें देखो खर्चे की भी बचत होती है, लोगों को आसानी से मिल भी जाती है. आफ्टर दैट लाइफ स्टाइल एंड डिसीज, जो हमारी जीवन शैली है और रोगों के बारे में. तो व्हाट इज द लाइफ स्टाइल? जीवन शैली क्या है? सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है कि नहीं? एवरी पर्सन दे हैव द डिफरेंट लाइफ स्टाइल. सब बोलते हैं कि मैं अपने तरीके से जीऊँगा, बोलते हो कि नहीं? मुझे मेरे तरीके से जीना है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा. यहाँ पे मुंबई में हम रहते हैं, नॉर्मल लोगों की लाइफ स्टाइल अलग, जो मिडिल क्लास फैमिली उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, जैसे फिल्म स्टार देखेंगे आप, सलमान खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, बड़े बड़े यहाँ के पॉलिटिशियन लीडर, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है. लाइफ स्टाइल मतलब क्या होता है उसके बारे में आप देखिए. लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड. ये हमारे डेली रूटीन पे और डेली फूड पे. नाउअडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड,
till late morning and going to bed late in night. Frequent changes in meal timing, lack of physical exercise, consumption of junk food, etc. have been increased. Due to this, such people are getting sick frequently. तो यहाँ पे देखो आजकल क्या होता है, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, समय पे हम व्यायाम नहीं करते हैं, समय पे ज़्यादा जंक फूड का हम सेवन करते हैं और इस कारण से जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है. ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक और इसके कारण समय पे न उठना, समय पे न खाना, व्यायाम नहीं करना, इसके कारण क्या होती है, ज़्यादा बीमारियाँ होती है कि नहीं? बीमारियाँ होती है तो हम स्वस्थ रहेंगे कि कैसे रहेंगे? नहीं. Independently of becoming sick to be all people should follow right lifestyle. इसलिए हमको क्या है, सही समय पे राइट जो है सही तरीके से जीवन शैली का उपयोग करना चाहिए. It must include sufficient sleep. एक 6 घंटे की नींद होना चाहिए हमारी. राइट फूड सही समय पे खाना चाहिए. योगासन, प्राणायाम एंड फिजिकली एक्सरसाइज. योगासन, प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम इसका उपयोग करना है. फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी. और हमको अपने कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करना चाहिए. सो वी कैन चेंज और लाइफ स्टाइल. तो ये लाइफ स्टाइल है वो हमारे डेली रूटीन पे एंड टाइम टू टाइम फूड पे डिपेंड करती है. इन द क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रिपेयर पोस्टर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसीज, पब्लिक अवेयरनेस इन द हरेट एग्जीबिशन इन द क्लास स्कूल. विजिट द पब्लिक हेल्थ सेंटर, clinic nearby, present the information about vaccination. So हमने क्या देखा, हेल्थ डिसीज, हेल्थ के बारे में we have learned about the health, about disease, types of disease according to duration, according to reasons, chronic disease, acute disease, hereditary disease, acquired disease, infection disease, non-infection disease. Infection disease में tuberculosis, hepatitis, dysentery, cholera, typhoid. We have find out details of it, symptoms of it. Okay. And now this is very important and interesting unit, health and disease. So thank you.